Okay, so very good evening, all the participants. Today we will be starting with the liquidation process. So, Roop Kiranji, I'm making you co-host, so you can keep on adding people if somebody comes. And let me share my screen with you. Liquidation process. I hope my screen is visible. Is it visible? Yes, sir. Okay. So Yes, liquidation sir. process. So what is the difference between CIRP and liquidation? First tell me what is the difference between CIRP and liquidation? CIRP is a resolution, sir, to Right, bring back the company from right. the debt, from the Okay, red. Liquidation is a closure, dissolution, death of the company. okay. So whether in every case of liquidation there has to be dissolution? If is sold in as a going concern, not required. Very good, very good. So in that case, what will be the end process? Closure of liquidation. Closure of the liquidation. Closure of the liquidation process, and the company will be sold as a going concern. Yes. Now, in liquidation, whether you have to fill up any form, like in CIRP, you have to fill up a form to initiate this process. Similarly, in case of liquidation also, whether you are required to fill up any form that, okay, I want to initiate liquidation. No, sir. No, very good. Once resolution is not done, Right. automatically So this is adjudicating a authority. incidental process. So this is automatically Yes. outcome of Hmm. failure of CIRP process. Another question, whether there are any application to adjudicating authority rules in case of liquidation. Like in CIRP, we have to read the sections, we have to read the application to adjudicating authority rules, and we have to read the regulations. So my question is, whether in case of liquidation also, we have to read the sections, we have to read the regulations also, Yes, and sir. whether there are any application to adjudicating authority rules, yes or no? No, sir. No, very good. So I think you are aware about the basic things, right? Yes, sir. So this is a saving grace for us that in case of liquidation, we have to read only two instead of three. In CIRP, there were three, right? Section, regulations, rules. Here, sections and regulations only. Initiation of liquidation. So what it says? 33.1. 33.1 says, where the adjudicating authority before the expiry of the insolvency resolution process period or the maximum period permitted for completion of CIRP under section 12 or the fast track corporate insolvency resolution process as the case may be does not receive a resolution plan, because the ultimate aim of CIRP process is resolution. Now, if this resolution plan is not received, and it could be both ways, it could be before the expiry also, it could be after the maximum period permitted for completion. So if a resolution plan is not received or rejects the resolution plan, resolution plan was received, it was approved also by COC, but it was rejected by the adjudicator. So in both these situations, it shall pass an order requiring the corporate debtor to be liquidated in the manner as laid down in this chapter. Right? So, what are the situations? No resolution plan received, resolution plan received, approved by COC, but rejected by adjudicator. So in this case, it shall pass an order requiring the CD to be liquidated in the manner as laid down this chapter and issue a public announcement stating that the corporate debtor is in liquidation and require such order to be sent to the authority with which the corporate debtor is registered. So, with whomsoever the corporate debtor is registered like MCA, SABI, so this order shall be sent to all those authorities that the company is now in liquidation. Right? Now let us read this regulation 12 also along with this, because it says it has to be read with along with regulation 12. Now what is regulation number 12? Regulation 12 is
regarding this public announcement, because we have just now read that it has to be the adjudicating authority shall issue a public announcement. Regulation 12. The liquidator shall make a public announcement. In section they say that the adjudicating authority shall issue a public announcement, but here they say the liquidator shall make a public announcement in Form B of Schedule 2 within 5 days from his appointment. Right? And the public announcement, it shall call upon the stakeholders to submit their claims or update their claims. So maybe that they submitted their claims during CIRP. In that case, they will update their claims, right? As on the liquidation commencement date, and provide the last date for submission of claims, which shall be 30 days from the liquidation commencement. In case of CIRP, it is 14. Here it is 30 days. Provide that where a stakeholder does not submit its claims during the liquidation process. There could be a case where a claim was submitted during CIRP, but it was not submitted during liquidation, right? Maybe the claimant has died. Maybe the claimant has moved to a foreign country. Maybe he did not notice the announcement. So that the claim submitted by such a stakeholder and duly collated by the IRP or RP as the case may be during the CIRP process shall be deemed to be submitted under section 38. So he will not say that okay, you have not submitted the claim. That means the claims which were submitted and collated. So in this case, they will be deemed to be submitted under section 38. And the announcement in one English and one regional language newspaper, on the website if any, on the website if any, designated by the board, right? Now let us have a look at the form also. The Form B of Schedule 2. What is this Form B of Schedule 2? This is the Form B. I hope form is visible on the screen. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. So it says name of the corporate debtor, date of incorporation, authority under which the corporate debtor is registered, incorporate CN number, LLP number, address of the registered office, and principal office, if any, of the corporate debtor. So here, address of the registered office and principal office. In case of CIRP also, whether you have to give both the addresses or only the registered office address. बोथ सर. अच्छा, CIRP में भी दोनों है? यस सर, उसमें तो मटेरियल वाले का भी देना है ना, मटेरियल नहीं, पब्लिक अनाउंसमेंट के फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि पब्लिक अनाउंसमेंट का जो फॉर्म है उसमें दोनों एड्रेस देने हैं या एक एड्रेस देना है, ये कह रहा हूं मैं. हाँ, वहां भी दोनों है, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड प्रिंसिपल ऑफिस Principal इफ एनी office. ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये भी देना है आपको. लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है. नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक्टिंग एज लिक्विड. अच्छा, इसमें कोई डिफरेंस हो सकता है क्या? डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, दोनों सेम रहेगा या डिफरेंस होगा? 6 और 7. हाँ जी, मेरा क्वेश्चन समझ गए आप भाई? वेदर डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट क्या सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? हाँ जी, डिफरेंट होगा. है डिफरेंट होना चाहिए सर. डिफरेंट होगा. वेरी गुड, ठीक है. क्योंकि डेट ऑफ क्लोजर आपका क्या होगा? डेट ऑफ क्लोजर तो होगा आपका कुछ सेक्शन 12 से गवर्न होगा, और लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट कौन सी है? जो ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है, लिखा है ना उसमें 33 में. लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट तो सीधी सी बात है, जो आपके ऑर्डर की डेट है, लिक्विडेशन ऑर्डर की डेट है, वही आपकी लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट है ना? यस सर. पास एन ऑर्डर. चलिए, नेम एंड
registration number of the insolvency professional acting as liquidator. Address and email of the liquidator as registered with the board. Address and email to be used for correspondence with the liquidator. Last date for submission of claims. Notice is hereby given that the NCLT, name of bench, has ordered the commencement of liquidation of the CD on date of passing of the order of liquidation. ठीक है. The stakeholders of name of the CD are hereby called upon to submit their claims with proof on or before. Insert the date falling 30 days from the liquidation commencement date to the liquidator at the address mentioned against item number 10. ठीक है. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. ठीक है. क्योंकि यहां पर आपको दोनों चीज देनी है, एड्रेस भी है और ईमेल भी है लिक्विडेटर का. तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को तो नेसेसरीली दे हैव टू सबमिट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ओनली, लेकिन जो अदर क्रेडिटर्स हैं दे में सबमिट इन पर्सन बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑल्सो. ठीक है. सबमिशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग प्रूफ ऑफ क्लेम शैल अट्रैक्ट पेनल्टीज. ठीक है. In case a stakeholder does not submit its claims during the liquidation process, the claims submitted by such a stakeholder during the CIRP under the insolvency and bankruptcy shall be deemed to be submitted under section 38. अब यहां क्या बोलता है? अब एक बात और बता दीजिए, क्या CIRP में भी स्टेक होल्डर सबमिट करते हैं क्लेम या क्रेडिटर्स क्लेम सबमिट करते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंस है? CIRP में whether every stakeholder submits the claim or only creditors submit the claim. Only creditors, sir. वेरी गुड. क्योंकि वहां पर अगर आप फॉर्म देखोगे CIRP का तो लिखा हुआ है द क्रेडिटर्स आर हियर बाय कॉल्ड अपॉन टू सबमिट देयर क्लेम्स, और यहां पर क्या है? यहां स्टेक होल्डर. Stakeholders. ठीक है. अच्छा, स्टेक होल्डर क्या डिफाइंड है क्या? स्टेक होल्डर का डेफिनेशन दे रखा है क्या? कंपनीज एक्ट में होगा सर. नहीं होगा नहीं. यहां पर भी होगा, यहां क्यों नहीं होगा? यहां भी होना चाहिए. सेक्शन 2 में देख लो, स्टेक होल्डर मिल गया. 2, ये रेगुलेशन 1 के में दे रहा ना, ये 2 में 2(1) का के 2(1) के रेगुलेशंस. स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे. मैं इसलिए यस पूछ सर. लेता हूँ, कई बार हो सकता है नहीं भी नजर आ रहा हो, इसीलिए मैं पूछ लेता हूँ आपसे. यस सर. यस सर. है ना? यस. तो स्टेक होल्डर्स मीन्स द स्टेक होल्डर्स एंटाइटल्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Distribution. प्रोसीड्स अंडर सेक्शन 53. मतलब जिसको भी 53 में प्रसाद मिलेगा उसको अपना क्लेम सबमिट करना है. ठीक है. चलिए, ये क्लियर हो गया. अब हम दोबारा चलते हैं 33 पर. और 53 आपको मालूम ही है, ये 53 है हमारा, ये है 53, है ना? 53 में सारा जो है, सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं. जो भी स्टेक होल्डर इसमें लिखा हुआ है सबको अपने क्लेम सबमिट करने हैं. हो गया. चलिए, नाउ 33(2). अब सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं. सेकंड सिचुएशन में ये है कि ये कॉन्शियस डिसीजन है. पहले में तो क्या है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया. मान लीजिए एक कंपनी है, उसका CIRP शुरू हुआ. ठीक है. अब CIRP शुरू हो गया, उसके बाद में वो उनमें से कोई वापस ही नहीं आया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास. ऐसा भी हो सकता है ना. एडजुडी मान लो CIRP उसके IRP RP की हो गई डेथ. ठीक है. और कोई आया ही नहीं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कोई अप्रोच ही नहीं करता, है ना. टाइम पार हो गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपने आप भी ऑर्डर इशू कर सकती है.
वो वाली सिचुएशन की बात कर रहा है 33(1) में। लेकिन 33(2) में कौन सी सिचुएशन है? 33(2) में वो सिचुएशन है कि CIRP हुई, सब कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई, है ना। और लेकिन उन्होंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि भाई देखो कंपनी में जान नहीं है, कोई प्लान वाला आने वाला नहीं है, ये सब ड्रामा बंद करो। क्योंकि IRP की भी मंथली बिल बन रहा है ना, RP का मंथली बिल बन रहा है। हमारी तो, हम तो पैसे लेने आए थे यहाँ पर, उल्टा और देने पड़ेंगे, है ना। और जितने पैसे देने पड़ेंगे हमारा शेयर उतना कम होगा। तो भैया डिसाइड करो टू लिक्विडेट दी कंपनी। 33(2) वो सिचुएशन है where the resolution professional at any time during the CIRP but before confirmation of resolution plan। ठीक है। 33(1) में तो कौन सी सिचुएशन आ गई? 33(1) में सिचुएशन आ गई कि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया था लेकिन रिजेक्ट कर दिया, उसने लिखा नहीं अप्रूव हो गया था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वही है। 33(2) में क्या है? देयर इज ए कॉन्शियस डिसीजन। ठीक है। बिफोर कंफर्मेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, इन्होंने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कर दिया अप्रूव बाय नॉट लेस देन 66% टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर। तो उन्होंने खुद डिसाइड किया कि भाई लेट अस लिक्विडेट दिस कंपनी। तो उस केस में क्या होगा? दे विल अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल पास ए लिक्विडेशन ऑर्डर। इसके लिए कोई फॉर्म नहीं है ना भाई। अब इन्होंने मान लो डिसाइड कर लिया COC ने कि भाई लिक्विडेट कर देते हैं, तो वो क्या करेंगे? अपना ये डिसीजन कम्युनिकेट करेंगे। इसके लिए कोई फॉर्म अलग से नहीं है, ऐसा नहीं कि आज कोई फॉर्म भरेगा वो। ठीक है। आती For the purpose of this subsection, it is hereby declared that the committee of creditors may take the decision to liquidate the corporate debtor any time after its constitution. ठीक है। And before confirmation of the resolution plan, including at any time before the preparation of information memorandum. वो ये भी कह सकते हैं भाई इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी बनाने का जरूरत नहीं है ना। क्यों इतना एफर्ट लगाओगे जब कंपनी में कुछ है ही नहीं? तो क्या तो आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाओगे? मान लो कोई एसेट ही नहीं है कंपनी में, ऐसा हो सकता है ना। तो क्यों आप इतने ड्रामा करोगे, है ना। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा लिक्विडेशन ऑर्डर। सेकेंड सिचुएशन। थर्ड, वेयर द रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज कॉन्ट्रावीन्ड। रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया था, इंप्लीमेंटेशन फेज में चली गई कंपनी, लेकिन कॉन्ट्रावेंशन हो गया। क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान क्या है? रेजोल्यूशन प्लान इज अ सेट ऑफ प्रोमिसेस। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, मैं नदियां निकाल दूंगा, मैं कंपनी को दोबारा चला दूंगा, लेकिन चला नहीं पाया। तो उस केस में कॉन्ट्रावेंशन हो गया बाय द कंसर्न्ड कॉर्पोरेट डेटर, एनी पर्सन अदर देन द कॉर्पोरेट डेटर हुज इंटरेस्ट्स आर प्रेजुडिशियली अफेक्टेड बाय सच कॉन्ट्रा। अब यहां पर CD को बोला भाई CD आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते क्योंकि CD ने तो कंट्रावीन किया। CD का मतलब क्या? नई मैनेजमेंट, है ना। तो एनी पर्सन अदर देन द कॉर्पोरेट डेटा हुज इंटरेस्ट्स आर प्रेजुडिशियली अफेक्टेड बाय सच कॉन्ट्रावेंशन may make an application to the adjudicating authority for liquidation order as referred to in sub clauses 1, 2 and 3 of clause B subsection 1। ठीक है। चलिए, तो तीसरी सिचुएशन आ गई कि प्लान अप्रूव हो गया था, कंपनी दोबारा ट्रैक पर आ गई थी, लेकिन बाद में कॉन्ट्रावेंशन हो गया। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि एप्लीकेशन तो लगा दी, ठीक है। किसने लगाई? जिसके भी इंटरेस्ट प्रेजुडिशियली अफेक्टेड हुए हैं बाय सच कॉन्ट्रावेंशन। कोई क्रेडिटर होगा, उस क्रेडिटर को बोला होगा हम आपको इतने पैसे देंगे, दे नहीं रहे अब, तो वो भी एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है। On receipt of an application under subsection 3, if the adjudicating authority determines that the corporate debtor has contravened, क्योंकि इसमें क्या होगा? ऑटोमेटिक नहीं है ना। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर सोचेगी कि भाई ये कॉन्ट्रावेंड, तो इट शैल पास ए लिक्विडेशन ऑर्डर। ठीक है। यहां तक हो गया। तो कौन कौन सी सिचुएशन हो गई? काजी राजी आप सारी सिचुएशन बताओ जिसमें लिक्विडेशन ऑर्डर पास होगा। अभी तक कितनी कितनी सिचुएशन हमने डिस्कस कर ली? सबसे पहली सिचुएशन कौन सी है? सर इसमें था कि रिजेक्ट्स द रेजोल्यूशन प्लान। नहीं, रिजेक्ट नहीं, रिजेक्ट तो दूसरा है। पहला क्या है? स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैं आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पे लगा दिया।
पहली सिचुएशन कौन सी है? कोई प्लान आया ही नहीं। हाँ, जब कोई प्लान रिसीव ही नहीं होता है। ठीक है, और टाइम पार हो गया। पार हो दूसरा, गई। रिजेक्ट हो गया। हो तीसरा, गया। रेजोल्यूशन प्लान। हाँ तीसरा प्लान, सीओसी ने डिसाइड किया कि भाई ये लिक्विडेशन ऑर्डर, लिक्विडेशन करा दो। ठीक है, कंपनी में जान नहीं। चौथी यस। सिचुएशन, प्लान आया, अप्रूव भी हो गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से, लेकिन बाद में कॉन्ट्रावेंशन हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रवेंशन। तो ये यस। 4 सिचुएशंस है जिसमें लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो सकता है। ठीक है, कोई फॉर्म नहीं है इसके लिए जिसमें अप्लाई करना है, सिंपल प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन जाए। ओके सर। नाउ 33(5). अब आपको मालूम है सीआईआरपी में भी एक मोरेटोरियम होता है ना? यस सर। अब मॉरिटोरियम सेक्शन 14 में लिखा हुआ, मॉरिटोरियम में क्या लिखते हैं? मॉरिटोरियम में ये होता है कि भाई कोई भी एक्शन नहीं चल पाएगा, प्रोसीडिंग स्टे हो जाएंगी, सरफेसी एक्शन भी नहीं हो सकता। अब बात ये है, क्या लिक्विडेशन में भी नहीं हो सकता? नहीं, सरफेस ही हो सकता है सर लिक्विडेशन में। हाँ, फर्क यही है, लिक्विडेशन में भी ऐसा नहीं कि जो मर्जी आप सूट फाइल करते रहो, वो सब नहीं है, लेकिन सरफेसी वाला एक्शन ले सकता है। इन इसीलिए वन। 33(5) में लिखा सब्जेक्ट टू सेक्शन 52। और सेक्शन 52 बात करता है राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर आर डिफरेंट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। अच्छा, क्या सीआईआरपी में भी सिक्योर्ड क्रेडिटर के राइट डिफरेंट है, या सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो एक ही बात है? सर वहां पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किया हुआ है। हाँ बिल्कुल। क्या सीओसी में कुछ प्रेफरेंस मिलता है सिक्योर्ड को, या सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब एक ही होते हैं सीओसी में? सर सीओसी की वहां जो पे मीटिंग होती है उसमें क्या फर्क होता है कुछ? नहीं सर। हाँ, कोई फर्क नहीं है सीआईआरपी में, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, दोनों सेम। यहां पर क्या है, यहां फर्क है। यहां पर ये कहता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 52, व्हेन ए लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड। शैल बी इंस्टीट्यूटेड लिखा मतलब नई प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, लेकिन पुरानी क्या कंटिन्यू हो सकती है? द आंसर इज यस। शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, इसका क्या मतलब है? नो बार ऑन कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग। तो जो प्रोसीडिंग रुक गई थी सीआईआरपी में, वो अब कंटिन्यू हो सकती है लिक्विडेशन में, है ना? यस। यस सर। चलिए, प्रोवाइडेड दैट a suit or other legal proceeding may be instituted by the liquidator on behalf of the corporate debtor with the prior approval of the adjudicating authority। ठीक है, अब कंपनी तो है नहीं, है ना, लिक्विडेशन में पहुंच गई, तो अगर कंपनी ने कोई प्रोसीडिंग शुरू करनी है किसी के अगेंस्ट में, तो उसके लिए भी अप्रूवल लेना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन, अच्छा इसका उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या एक आदमी सूट फाइल करना चाहता है कंपनी के अगेंस्ट में, क्या उसको भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है? नो सर। हाँ, उसको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5, लेकिन अगर लिक्विडेटर को कोई सूट फाइल करना है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 shall not apply to legal proceedings in relation to such transactions as may be notified। अच्छा, एक और बात, ये जो ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन है, इट शैल बी डीम्ड टू बी ए नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, कि सारे एम्प्लॉयज की छुट्टी हो गई। सीआईआरपी में ऐसा नहीं है। सीआईआरपी में क्या है कि सीआईआरपी में तो नॉर्मली दी एम्प्लॉयज कंटिन्यू टू वर्क। रिन्यू करते हैं काम को। उनको निकाल भी सकते हैं, कोई बार नहीं है निकालने पर। मान लो 100 एम्प्लॉयज है, 50 की जरूरत है, तो 50 को निकाल सकते हैं। या फिर वो ये कहेगा भाई ठीक है, यू विल बी डीम टू बी वर्किंग, आप ही वर्क करोगे, जो नहीं करेगा उसको सैलरी नहीं मिलेगा, या उसको सीआईआरपी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। क्योंकि वहां क्या है सीआईआरपी में, सीआईआरपी में तो जो आदमी काम करेगा उसको वो सीआईआरपी कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, है ना? तो वो जो एक्चुअली वर्क करते हैं उनको ही सीआईआरपी कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। यहाँ क्या है, द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन शैल बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू द ऑफिसर्स एम्प्लॉयज एंड वर्कमैन।
of the corporate debtor, except when the business of the corporate debtor is continued during the liquidation process by the liquidator. ठीक है, अगर यहां पर भी कंटिन्यूड रहता है तो उस केस में इट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इट शैल बी डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज। मान लीजिए डायरेक्टर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, कंपनी चलेगी लिक्विडेशन में, अलग से कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है टर्मिनेशन की, एम्प्लॉयज को भी कोई टर्मिनेशन का नोटिस देने की जरूरत नहीं है, डीमिंग फिक्शन है, डीम्ड टू बी, ये जो है कोई अलग से नोटिस देने की जरूरत नहीं है, जो जो लिक्विडेशन ऑर्डर है ना, यही डीम्ड टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज है। ठीक है। 34, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फीस टू बी पेड। अच्छा, एक बात और बता दीजिए यहीं पर ही, ये जो डिसीजन है टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, ठीक है, या टू कैरी ऑन द बिजनेस, ये लिक्विडेटर खुद ही ले लेगा या किसी से पूछने की जरूरत है? दिल्ली लेगा सर। स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी से हाँ। कंसल्ट। अच्छा। हाँ, ये स्टेक होल्डर, क्योंकि मैं इसके साथ ही ले लेता हूँ, क्वेश्चन सही रहते हैं, बाद में ना वो भूल जाते हैं। वो मैं यस सर, आपको यस। दिखा देता हूँ। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी है, तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी ना वो एडवाइज करती है इसको, वो ओके। किस किस बात पे एडवाइस करती है वो मैं बता देता हूँ। शायद 31A होगा रेगुलेशन। सर मोड ऑफ सेल में भी बताया हुआ है ना कि जो ईएनएफ में गोइंग कंसर्न की सेल है, हम्म। मोड ऑफ सेल जो आपका रेगुलेशन है उसमें बताते हैं ना कि अगर आप गोइंग कंसर्न की सेल करते हो तो क्रेडिटर्स या स्टेक होल्डर्स एडवाइस करते हैं कि नहीं, वो तो अलग कहानी मैडम, अभी वहाँ वहाँ पहुंचे नहीं अभी हम। क्यों रूप किरण जी, रेगुलेशन नंबर बताना जरा, जहां पर ये लिखा है कि भाई वो उनसे बात करेगा कि वेदर इट इज टू बी केप्ट एज ए गोइंग कंसर्न। वो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी से बात करके लगाती सर वो। रेगुलेशन नंबर वो तो मुझे भी मालूम है, रेगुलेशन नंबर बताना। हम्म, 32A है सर। 32 है तो सेल एज ए गोइंग कंसर्न है, सेल है, अच्छा। वो तो सेल की बात नहीं। सर 31A में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी के बारे में है। हम्म। 31A नहीं, वो एक बार एग्जैक्ट पढ़ के बताओ ना क्या है। एग्जैक्ट। सर इसमें 31A में अगर बी पॉइंट देखते हैं, सेल अंडर रेगुलेशन 32 इंक्लूडिंग मैनर ऑफ सेल। मैन ऑफ सेल की बात नहीं है, मैन ऑफ प्रीवियस सेल तो अलग कहानी हो गई ना। गोइंग कंसर्न देखना है, हम्म। बट स्टिल फोल्डर में आना चाहिए।
चलो कोई बात नहीं, ऐसा है, इसको ग्रुप में लिख दीजिएगा देख करके, नहीं तो मैं भी लिख दूंगा, इसमें टाइम लग जाएगा बिना बात के, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी से आपको Hello, पूछना। sir. 32A5 है sir, where the liquidator is of the opinion that if it is visible to run the CD as a वेरी going गुड, concern, वेरी गुड। he shall हाँ consult the consultation हाँ, committee तो and मेरे को ना only रेगुलेशन नंबर याद नहीं आ रहा था, वेरी गुड, 32A5 sir. वेरी गुड। सर मैंने भी तो आपको 32A बोला ही था। नहीं, आप तो सेल से बोल रहे थे ना, सेल का कोई मतलब नहीं है। सर उसमें ENF बोल रहे थे ना मैं, क्या? कि उसमें मोड ऑफ सेल ही तो दिया हुआ है सर, ENF में कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न। एक मिनट, एक मिनट, नहीं सेल के अलावा कहीं लिखा हुआ, सेल वाला अगर थर्टी बोल टू रहे हो ए तो और सेल। 32। हम्म। There is a 32A5 sir, 32A5 सर sub regulation रियलाइजेशन 5. ऑफ एसेट्स। हाँ सर, 32A5 में दिया हुआ है वो, ओनली ऑन इट्स एडवाइस ही शैल रन हाँ ये, कॉर्पोरेटेड। हम्म, वो ये कह रहा है बेसिकली कि वेयर द लिक्विडेटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज वायबल टू रन द कॉर्पोरेट डेटर एज ए गोइंग कंसर्न, ही शैल कंसल्ट द कंसल्टेशन कमिटी एंड ओनली ऑन इट्स एडवाइस ही शैल रन द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज ए गोइंग कंसर्न टू द एक्सटेंट अप्रूव। मतलब ये है कि इसको अगर हम 32A5 को इसके साथ मिला करके पढ़े, जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं अभी, नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, तो बेसिकली वो कह रहा है कि आप रिकमेंडेशंस ले लो, किससे? कंसल्टेशन कमेटी से। वो और कह रहा है कि ओनली ऑन इट्स रिकमेंडेशन ही शैल रन द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज ए गोइंग कंसर्न टू द एक्सटेंट अप्रूव्ड। 34, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, जब हम दोबारा आएंगे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी पे फिर चलेंगे इस पर। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फीस टू बी पेड, where the adjudicating authority passes an order for liquidation of the corporate debtor under section 33, the resolution provisional। अब देखो, एक तो रेजोल्यूशन प्रोविजनल है ही ऑलरेडी, है ना? क्या वही लिक्विडेटर बन सकता है? वही कह रहा है कि अगर वो कंसेंट देगा तो वो बन सकता है, ठीक है? दोबारा उसको कंसेंट देनी है, shall act as the liquidator। On the appointment of a liquidator under this section, all powers of the board of directors, KMP and partners as the case may be shall cease to have effect। दोनों में फर्क है, CIRP में क्या हो रहा है? पावर सस्पेंड हो रही है, यहां क्या है? सीज टू हैव इफेक्ट एंड शैल बी वेस्टेड इन द लिक्विडेटर, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है वो कहे हमारी तो पावर खत्म हो गई, हम इंफॉर्मेशन नहीं देते। इंफॉर्मेशन कोई मांगेगा तो देनी पड़ेगी, ठीक है? द पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डायरेक्टर शैल एक्सटेंड, वर्ड क्या लिखा? शैल। शैल का मतलब ऑब्लिगेटरी है, उनकी ड्यूटी है टू एक्सटेंड ऑल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन टू द लिक्विडेटर एज मे बी रिक्वायर्ड बाय हिम इन मैनेजिंग द अफेयर्स, ठीक है? एंड द और इसको रिप्लेस कर सकते हैं। पहला, अगर रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था, इट वाज रिजेक्टेड, कि भाई सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 वाली कंडीशन ही मीट नहीं हुई। सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 में क्या कंडीशंस हैं? लिक्विडेशन वैल्यू टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, डिसेंडिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, नो वायलेशन ऑफ एनी लॉ, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? अगर उनमें से कोई कंडीशन मीट नहीं हुई और वो रिजेक्ट हो गया, तो फिर उस केस में इसको रिप्लेस कर दे, या फिर बोर्ड रिकमेंड कर दे रिप्लेसमेंट, या फिर वो अपनी रिटर्न कॉन्सेंट ही ना दे, ठीक है? तो उस केस में रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछ लेगी, बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट कर देगा, ठीक है? चलिए, अच्छा, फीस कैसे कैसे चार्ज होगी? फीस के लिए अलग अलग रेगुलेशन है, रेगुलेशन 2A, 2B, रेगुलेशन 3, रेगुलेशन 4। और ये दी कैसे जाएगी? ये दी जाएगी फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के पास पैसा ही ना हो, है ना? भाई लिक्विडेशन ऑर्डर हो गया, अब कंपनी के पास पैसा ही नहीं है। अब कंपनी के पास पैसा ही है ही नहीं, तो ये पैसा देंगे कहां से? तो रेगुलेशन 2A क्या बोलता है? कि भैया पहले ही आइडिया लगा लो कि आप लिक्विडेटर को पैसे दे पाओगे या नहीं दे पाओगे।
ये बात सीआईआरपी में ही हो जाती है। सीआईआरपी रेगुलेशंस में लिखा है कि वेयर द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डिड नॉट अप्रूव ए रेजोल्यूशन प्लान, liquidator shall call upon the financial creditors being financial institutions, क्योंकि लिक्विडेशन कॉस्ट तो इसको मालूम है, इसको पता है ना भाई फीस कितनी लगनी है। तो अगर इसको लगता है कि भाई मेरी लिक्विडेशन कॉस्ट भी नहीं पूरी होगी, क्रेडिटर की बात तो छोड़ दो, तो वो क्या कहेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को बोलेगा कि भैया आप पैसे लाओ। किनको? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। किसी आदमी की डेथ हो गई है, अब उसके घर वाले बिल्कुल ही कंगले हैं, कुछ है ही नहीं पैसे, जलाने के भी पैसे नहीं है। तो क्या करते हैं, रिश्तेदारों से कहते हैं भाई तुम 5,000-5,000 रुपए दो, है ना, इसको जला के तो आए। ऐसा ही ये सिस्टम है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उनको बोलेंगे कि भैया तुम कंट्रीब्यूट करो। अब वो बोलेंगे हम क्यों कंट्रीब्यूट करें भाई, पहले हम तो पैसे लेने आए हैं, देने थोड़े आए हैं तुम्हारे को। तो कहता चिंता मत करो, ये जो है लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। वो कहते भाई लिक्विडेशन कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा तो क्या इसको ब्याज भी दोगे क्या या नहीं दोगे? देंगे, ब्याज भी देंगे। ठीक है, चलो हम बात मान जाते हैं आपकी। ये कब तक पैसे जमा कराने हैं, कब तक जमा कराने हैं पैसे? ये विद इन 7 डेज एक एस्क्रो अकाउंट खुल जाएगा, उस एस्क्रो अकाउंट में ये पैसे जमा होंगे। ठीक है, डिपॉजिटेड इन ए डेजिग्नेटेड एस्क्रो अकाउंट टू बी ओपन एंड मेंटेन इन ए शेड्यूल बैंक विद इन 7 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द लिक्विडेशन ऑर्डर। क्योंकि ये क्रियाक्रम कराने वाला जो पंडित आया है, लिक्विडेटर जो आया है, इसको तो बेचारे को पैसे मिल जाए, पता चले ये लिक्विडेटर तो बन गया, इसको ही पैसे नहीं मिल रहे, तो उस कह देते हैं भैया पहले ही पैसे जमा करा दो, और ये जो है ये विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा एज पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट। अब इसका इंटरेस्ट क्या रेट होगा? इंटरेस्ट होगा जो बैंक रेट पर। ठीक है, चलिए। थर्टी, ये तो रेगुलेशन 2A हो गया। रेगुलेशन 2B, रेगुलेशन 2B भी देख लेते हैं। रेगुलेशन 2B क्या बोलता है? अब यहां पर लिक्विडेशन में भी ना कोशिश करते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो जाए। ये कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट क्या है? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ये है बेसिकली कि भाई जितना भी आप एंटाइटल्ड हो उससे कुछ कम के लिए आप राजी। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है ना, भाई जितना आप राइटफुल एंटाइटलमेंट है उससे कम में आप राजी हो जाओ। ठीक है, और ये सेक्शन 230 में दिया हुआ है। तो वेयर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड अंडर सेक्शन 230, इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन। क्योंकि क्या होता है, कई बार उनको लगता है कि भाई अगर हम कोई अपना आप कर दें तो उसमें हो सकता है हमें ज्यादा मिल जाए। लिक्विडेशन में तो ऑक्शन वगैरह होगी, पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे कितने नहीं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज की स्कीम ले आते हैं, भाई हमें 100 रुपये मिलने थे, हमें तुम 60 ही दे दो। ठीक है, ऑर्डर लिक्विडेशन ऑक्शन में तो जो मिलेगा वही लेना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्रोमाइज की स्कीम आप ला सकते हो। अब इसमें भी कई क्वेश्चन है कि अगर कोई आदमी रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं कर सकता, इफ समबडी इज इनएलिजिबल टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान, ही कैनॉट बी ए पार्टी इन एनी मैनर। इन एनी मैनर मतलब ना तो वो प्रपोजल दे सकता, ना ही वो इसमें बायर बन सकता। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द लिक्विडेटर शैल फाइल द प्रपोजल ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ओनली इन केसेस वेयर सच रिकमेंडेशन हैज बीन मेड बाय द कमिटी। अगर कमिटी ने रिकमेंडेशन दी है अपना सीओसी ने, तो ही ये प्रपोजल फाइल करेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द लिक्विडेटर शैल नॉट फाइल सच प्रपोजल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट। ठीक है, अब लिक्विडेशन में भी टाइम पीरियड है। लिक्विडेशन में वो कहता है कि जो टाइम टेकन है, जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में टाइम लगेगा, नॉट एक्सीडिंग 90 डेज शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिक्विडेशन पीरियड। ठीक है, अब कॉस्ट का क्या होगा? कॉस्ट में ये है कि अगर स्कीम सैंक्शन हो जाती है, ये भी एनसीएलटी के पास स्कीम जाती है, वो अलग चीज है। ठीक है, अगर स्कीम सैंक्शन हो जाएगी तो क्या होगा,
दैट शैल बी बोर्न बाय द कॉर्पोरेट डेटर। और अगर स्कीम सैंक्शन नहीं हुई तो जो एप्लीकेंट है वो बियर करेगा। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट के बारे में। 2B के बाद हमारा रेगुलेशन नंबर 4 आता है, लिक्विडेटर्स फीस। क्योंकि पहले तो हम फीस की बात कर लेना भाई, लिक्विडेशन ऑर्डर तो हो गया, ये कहता है भाई यार दूसरों को तो काम पहले बाद में करूंगा, पहले मेरी फीस की तो बताओ, मेरी फीस कैसे दोगे? क्या कहता है? ऐसा हो सकता है कि सीओसी ने पहले ही पूछ लिया हो। सीओसी नॉर्मली क्या करती है, लास्ट मीटिंग में पूछ लेती है आरपी से कि भाई अगर अब जैसे हम लिक्विडेशन प्रपोज कर रहे हैं तो तुम कितनी फीस लोगे। ठीक है, तो डिसाइड करती है कमेटी। तो ये पहला स्टेप है, फीस पेबल टू द लिक्विडेटर शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन टेकन अंडर रेगुलेशन 39D ऑफ सीआईआरपी रेगुलेशंस। अच्छा, वहां अगर फिक्स नहीं हुई फीस तो क्या होगा, फिर कंसल्टेशन कमेटी फिक्स कर सकती है इन दी फर्स्ट मीटिंग। और कंसल्टेशन कमेटी की पहली मीटिंग कितने दिन में होनी है? कंसल्टेशन कमेटी की पहली मीटिंग कितने दिन में होनी है? 7 days. वेरी गुड, 7 डेज के अंदर होनी है। अच्छा, और कंसल्टेशन कमेटी बनानी कितने दिन के अंदर है? 60 days. 60 डेज। 60 days। अब आप कह रहे हो 60 डेज में कमेटी बनानी है और 7 दिन के अंदर मीटिंग होनी है, तो कुछ बात उल्टी पुल्टी नहीं लग रही? तो उसमें सीओसी के मेंबर्स आ जाते हैं। वेरी गुड, हाँ। तो जो सीओसी के मेंबर होंगे वही कंसल्टेशन कमेटी के बन जब तक कंसल्टेशन कमेटी नहीं बन जाती। ठीक है, चलिए। In cases other than those covered under sub-regulation 1 and 1A, the liquidator shall be entitled to a fees. पहला हो गया, सीओसी ने डिसाइड कर लिया। दूसरा, कंसल्टेशन कमेटी ने डिसाइड कर लिया। तीसरा तीसरा यह है कि जो सीआईआरपी के टाइम पे फीस ले रहा था वही लेते रहो। ठीक है, कौन से पीरियड के लिए? जो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का। और बाकी के लिए फिर ये चार्ट दे दिया, इस चार्ट के हिसाब से फीस ले लो। ठीक है, चलिए, चार्ट के बारे में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं दोबारा वहीं पर। तो ये फीस की बात हो गई, अब इसको शांति पड़ गई कि भैया फीस तो मुझे मिल जाएगी। नाउ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। Subject to the directions of the adjudicating authority, the liquidator shall have the following powers and duties. पहला, to verify claims of all the creditors. अब यहां देखो, वहां क्या वर्ड लिखा था? वहां वर्ड क्या लिखा था? टू कोलेट। उसको सिर्फ कोलेट करने थे। कोलेट का मतलब दोनों कॉलम मेंटेन करता है वो, क्लेम सबमिटेड, क्लेम्स एडमिटेड। यहां पर क्या है? वेरीफाई कर रहा है। वेरीफाई का मतलब रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर रिजेक्ट कर देगा लिक्विडेटर तो क्या होगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएंगे, अपील होगी। ठीक है, सेक्शन शायद 42 है। चलिए आएंगे सेक्शन 42 पे तो पता चल जाएगा। सारे क्लेम्स को वेरीफाई करना है। उसके अलावा कस्टडी एंड कंट्रोल, टू इवेल्युएट द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स एंड प्रिपेयर ए रिपोर्ट। इसको एक रिपोर्ट भी बनानी है। कौन सी रिपोर्ट है ये? रेगुलेशन 13, एक बार देख लेते हैं। रेगुलेशन 13 में कौन सी रिपोर्ट है? रेगुलेशन 13, ये है रेगुलेशन 13, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, अब इसका काम शुरू हो गया। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में क्या क्या? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कितने दिन के अंदर बनानी है? 75 डेज। और उसमें क्या क्या देना है? कैपिटल स्ट्रक्चर, estimates of its assets and liabilities as on the liquidation commencement date based on the books of the corporate debtor। अगर उसको लगता है कि बुक्स रिलायबल नहीं है तो वो अपने पास जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से दे। ठीक है, कैसे पता चलेगा? मान लो क्लेम्स में आ रहा है कुछ, बुक्स में लिखा है कुछ, तो इसका मतलब बुक्स रिलायबल नहीं है। उसके अलावा वो इसी स्टेज में बता देगा कि भैया कुछ फ्रॉड व्रॉड तो नहीं लग रहा उसको। क्या उसको कुछ इंक्वायरी करनी है क्या, रिलेटिंग टू फॉर्मेशन, प्रमोशन और फेलियर ऑफ द कॉर्पोरेट डेट एंड द प्रपोज्ड प्लान ऑफ एक्शन फॉर कैरिंग आउट द लिक्विडेशन।
ठीक है, कि लिक्विडेशन कैसे कैसे कैरी आउट करेगा, टाइमलाइन कितनी होगी और एस्टिमेटेड लिक्विडेशन कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड कितना होता है लिक्विडेशन के लिए, लिक्विडेशन कितने टाइम में करना है, 1 year. 1 ईयर। ओके, रेगुलेशन नंबर लास्ट में है मेरे ख्याल 42 के आसपास है शायद, क्या है 44. 44, 44 है, कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन। The liquidator shall liquidate the corporate debtor within a period of 1 year from the liquidation commencement date, notwithstanding pending of any application for avoidance transaction। ऐसा हो सकता है कि लिक्विडेशन ऑर्डर हो जाए लेकिन अवॉइडेंस एप्लीकेशन पर डिसीजन अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, अच्छा अगर 1 साल में लिक्विडेशन नहीं कर पाया तो क्या करेगा, फिर एक एप्लीकेशन देगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, अलॉन्ग विद द रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग कि भाई क्यों कंप्लीट नहीं हुआ और एस्टिमेटेड टाइम कितना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी हो। तो इसने रिपोर्ट एक बना दी, रिपोर्ट बनाने पे ये सारा राइट्स एंड ड्यूटीज पर थे हम लोग। यहाँ इवेल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, टू टेक सच मेजर्स एंड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर इट्स बेनिफिशियल लिक्विडेशन। बेनिफिशियल लिक्विडेशन का मतलब क्या, बेनिफिशियल लिक्विडेशन का मतलब ये है कि उतना ही काम करना है जितना लिक्विडेशन के लिए जरूरी है। ये नहीं कह देगा मैं कोई नई प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो सब ड्रामाबाजी नहीं। जो फॉर इट्स बेनिफिशियल लिक्विडेशन जरूरी है उतना ही काम करना। ठीक है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 52, क्योंकि 52 में कुछ प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी मॉर्टगेज है, अब उसके लिए अलग से डिस्कशन होगा। वो तो सिक्योर्ड क्रेडिटर बताएगा कि भैया मैं खुद रियलाइज करूंगा या मैं इसको भी लिक्विडेटर को दे रहा हूं। तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 52 टू सेल द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्सेबल क्लेम्स बाय पब्लिक ऑक्शन और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट with power to transfer such property to any person or body corporate or to sell the same in parcels in such manner as may be specified। ये रेगुलेशन 32, रेगुलेशन 33 जो सेल वगैरह के साथ डील करते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी जो सेल है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ये भी आपको किसी ऐसे बंदे को नहीं करनी है जो कि इनएलिजिबल हो अंडर 29 है। बाकी तो सारे काम करने हैं। ठीक है, मान लो कोई चेक ड्रॉ करना है, अब चेक कौन करेगा, यही सब करेगा। कोई एग्रीमेंट साइन करना, सब कुछ यही करेगा। अब जब आप शेयर सब्सक्राइब करते हो तो आप कहते हो कि भाई आई प्रॉमिस टू पे टू द कंपनी, है ना, इतने पैसे 100 रुपए मैंने देने हैं। अब 50 रुपए अगर ऑलरेडी पेड अप है तो 50 रुपए मांग सकता है इवन ड्यूरिंग लिक्विडेशन। ठीक है, तो मांग सकता है। अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो उसका लिए एक ऑफिशियल लेटर निकाल देगा, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव देगा। यही मतलब है इतना। ठीक है, टू ऑब्टेन एनी प्रोफेशनल असिस्टेंस फ्रॉम एनी पर्सन और अपॉइंट एनी प्रोफेशनल। दोनों में क्या फर्क है, टू ऑब्टेन एनी प्रोफेशनल असिस्टेंस और अपॉइंट एनी पर्सन, तो यहां तो अपॉइंटमेंट है एज एन एम्प्लॉय। ठीक है, और प्रोफेशनल असिस्टेंस मतलब फ्रीलांस, है ना, एज ए प्रोफेशनल in discharge of his duties, obligations and responsibilities, to invite and settle claims of creditors and claimants and distribute proceeds। दोनों बातें लिखी, क्रेडिटर्स भी और क्लेमेंट्स भी। वहां पर क्या लिख दिया, स्टेक होल्डर्स। सीआईआरपी में क्या है, सिर्फ क्रेडिटर्स। टू इंस्टीट्यूट और डिफेंड एनी सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग, टू इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल अफेयर्स, टू टेक ऑल सच एक्शंस, टू वेरीफाई एनी प्रॉपर डीड, ये सारे काम ये करेगा। ठीक है, टू अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर सच ऑर्डर्स और डायरेक्शंस एज मे बी नेसेसरी एंड टू रिपोर्ट द प्रोग्रेस ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस इन ए मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो रेगुलेशन 15 है, रेगुलेशन 15 दे बोलता है भाई आपको क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं वो सारे डिस्क्राइब्ड हैं।
किसी भी स्टेक होल्डर से कंसल्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट बाइंडिंग। ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो फिर आपको बताना है। ठीक है, मान लीजिए स्टेक होल्डर बोल रहे हैं कुछ, ये बोल रहा है कुछ, तो क्या करेगा फिर उस सिचुएशन में? भाई स्टेक होल्डर बोल रहे हैं इस तरह से डिसीजन लो, ये कुछ और बोल रहा है, तो उस सिचुएशन में इसकी क्या ड्यूटी है? स्टेक होल्डर का बाइंडिंग तो नहीं होता है, बाइंडिंग लेकिन नहीं उसको होगा तो ये किसी को बताना है क्या? मान सर फिर लीजिए उसको मीटिंग हुई, मीटिंग में स्टेक होल्डर ने बोला कुछ, इसने बोला कुछ, तो ये सर बात किसी को बतानी है क्या या नहीं बतानी? सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बताएगा रीजंस वो। हाँ, रेगुलेशन नंबर पर ये इसका फॉर्म दिया हुआ है ना अलग से, स्टेक फॉर्म तो होल्डर। है, फॉर्म तो बाद की बात है, पहले तो रेगुलेशन पढ़े हम। ये देखो क्या लिखता है, द एडवाइस ऑफ द कंसल्टेशन कमेटी शेल नॉट बी बाइंडिंग। अगर वो प्रोवाइडेड दैट वेयर द लिक्विडेटर टेक्स ए डिसीजन डिफरेंट फ्रॉम द एडवाइस गिवन बाय द कंसल्टेशन कमेटी, ही शेल रिकॉर्ड द रीजन, पहले तो रीजन रिकॉर्ड करेगा, एंड सबमिट द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द सेट डिसीजन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड द बोर्ड। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी बताएगा और बोर्ड को भी बताएगा विद इन 5 days ऑफ दिस सेट डिसीजन एंड इंक्लूड इट इन द नेक्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपनी नेक्स्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट में बताएगा। ठीक है, क्या रेगुलेशन नंबर है? रेगुलेशन नंबर ये रहा, ये रेगुलेशन नंबर है आपका, ये 31A। 41 है। 32 से जो पहला वाला पेज है ना उसके ऊपर है, और इसमें यहां पर आपने दे दिया इसका फॉर्म, फॉर्म भी दे दिया इन्होंने। एक मिनट, ये ये फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर तो से शुरू हुई है इसकी। ये फॉर द अटेंशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। फॉर्म ए शेड्यूल 2 परफॉर्मा फॉर रिपोर्टिंग कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स। फॉर्म ए। फॉर्म ए शेड्यूल 2। हम्म ये डबल ए है और ये ए, परफॉर्मा फॉर रिपोर्टिंग कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स। ये आपका रेगुलेशन नंबर 31A की बात करता है, तो इस तरह से इसको डिटेल देनी है। चलिए, अब दोबारा चलते हैं हम वहीं पर अपना, जहां पर हम थे। क्योंकि चीजों को ना जोड़ जोड़ के पढ़ लोगे, स्टोरी की तरह पढ़ो तो आराम से समझ में आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और वहीं पर ही लिख लो साथ के साथ ही कि भाई ये रेगुलेशन नंबर है, इसमें ये कहानी लिखी गई है। ये हो गया। चलिए 36, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लिक्विडेशन स्टेट। पहले तो ये बताओ 36 की जरूरत क्या है, क्यों बनाना है ये लिक्विडेशन स्टेट? और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स टू स्टेक होल्डर्स। हम्म। और लिक्विडेटर की फीस भी इसी में से पेमेंट होगी, ये भी लिखा हुआ है।
अगर लिक्विडेशन स्टेट में कुछ नहीं है तो नहीं मिलेगा, और लिक्विडेशन स्टेट में वो भी चीज आ जाएगी ना जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देंगे। For the purpose of liquidation, the liquidator shall form an estate of the assets mentioned in subsection 3, which will be called the liquidation estate. The liquidator shall hold the liquidation estate as a fiduciary for the benefit of all the creditors. ठीक है, और इसमें क्या क्या आएगा, सारे एसेट्स आ जाएंगे, इंक्लूडिंग एसेट्स हेल्ड इन सब्सिडियरी, tangible, intangible, movable, immovable, in the country, outside the country, subject to determination of court। ठीक है, सारे के सारे इसके अंदर आ जाए। ऑल प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन, लेकिन क्या नहीं आएंगे, एसेट्स हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर एनी थर्ड पार्टी, या फिर बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, या ऑल सम्स ड्यू टू एनी वर्कमैन और एम्प्लॉय फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड द ग्रेच्युटी फंड। ये लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट नहीं बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मतलब, एम्प्लॉय का पैसा काट करके रखा हुआ है, ठीक है, कंपनी पर पीएफ, पेंशन फंड या ग्रेच्युटी फंड में कुछ पैसा रखा हुआ है। अब वो जो पैसा रखा है तो हो सकता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास बैंक बैलेंस भी होगा, है ना, या कोई सिंकिंग फंड होगा, या कोई इन्वेस्टमेंट होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो टू दैट एक्सटेंड वो लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब उसको अलग रख लोगे आप। ऐसा हो सकता है कि आपके पास बैंक बैलेंस में 50 लाख रुपए हैं, लेकिन 25 लाख रुपए पीएफ का है, तो आपका जो लिक्विडेशन स्टेट में 25 लाख ही जाएगा, ये वाला पैसा नहीं जाएगा। ये पैसा आपको अलग से देना है। ये 53 का भी पार्ट नहीं है, ठीक है, ये 53 का पार्ट नहीं है, क्योंकि 53 का पार्ट कौन सा है, जो 36 का पार्ट है। ये 36 का ही पार्ट नहीं है, तो 53 का भी पार्ट नहीं। Other contractual arrangements which do not stipulate transfer of title but only use of the assets। ठीक है, assets held in security collateral held by financial service providers and are subject to netting and set off in multilateral trading or clearing transactions। मतलब क्या, किसी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के पास आपके एसेट्स हैं, कोई डिमैट अकाउंट है कंपनी का, उसमें आपने कोई सिक्योरिटी दे रखी है और कुछ ट्रांजैक्शंस भी कर रखी है, तो वो नेट ऑफ हो जाएंगे, और जो नेट है वो लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बन जाएगा। पर्सनल एसेट्स जो डायरेक्टर के या शेयर होल्डर के, दे विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन स्टेट। ठीक है, प्रोवाइडेड सच एसेट्स आर नॉट हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस। लेकिन अगर अवॉइडेंस ट्रांजैक्शंस की वजह से है ये, तो फिर ये लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बन जाए। एसेट्स ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडरी, ये भी लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो लिक्विडेशन स्टेट बना लिया। ये पीएफ वाला पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आ गया? रूप किरण जी, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए जरा, पीएफ वाला पॉइंट, ऑल सम्स ड्यू टू एनी वर्कमैन और एम्प्लॉय। हाँ सर, इसका केस भी है, जेट हाँ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन। हाँ तो ये अमाउंट एम्प्लॉयज का रहता, ये हम्म, पीएफ को जाता है, हाँ बट हाँ लिक्विडेशन में रहने से वो भेजते नहीं है, बाद में भेजते हैं या वो उनका एक अकाउंट में रख लेते हैं। हम्म बट दैट अमाउंट डज नॉट बिलोंग टू कॉर्पोरेट डेटा, इट इज द मनी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, हम्म who बिल्कुल, in turn which in turn is given to the employees। हाँ बिल्कुल ठीक है। नाउ हम्म, पावर्स ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अब लिक्विडेटर को सारे काम तो करने हैं, तो उसके बाद जहां से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो सकती है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास, क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसी के पास, कोई मान लो सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जहां से भी उसको इंफॉर्मेशन मिल सकती है वहां से वो ले सकता है। भाई लिक्विडेटर बन गया, आपके पास पासवर्ड ही नहीं है, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, सब ले सकते हो आप, यहां से पावर मिल जाती है आपको इस सेक्शन से। वो कहेगा क्यों दे दे, आप बता दो इस सेक्शन में है। ठीक है, द क्रेडिटर्स में रिक्वायर द लिक्विडेटर टू प्रोवाइड देम एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
अब इंफॉर्मेशन ले तो सकता है, क्या देनी भी पड़ेगी? द आंसर इज यस। तो क्रेडिटर भी मांग सकते हैं इंफॉर्मेशन लिक्विडेटर से, ठीक है। तो विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम सच रिक्वेस्ट और प्रोवाइड रीजंस फॉर नॉट प्रोवाइडिंग सच इंफॉर्मेशन। तो जब अगर क्रेडिटर को इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो 7 दिन के अंदर देनी पड़ेगी, नहीं तो आपको रीजन देना पड़ेगा व्हाई यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। 38 कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स। द लिक्विडेटर शैल रिसीव और कलेक्ट the claims of creditors within a period of 30 days from the date of commencement of the liquidation process. A financial creditor may submit a claim to the liquidator by providing a record of such claim with an information utility. मतलब क्या कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में डेट रजिस्टर रहता है, तो वहां से वो ले आएगा रिकॉर्ड, ठीक है। अगर नहीं है तो जो भी रिकॉर्ड है वहां वो दे सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए, इनके लिए सबके लिए फॉर्म है, ठीक है ना। तो बेसिकली कौन से फॉर्म में क्लेम करेगा, वो फॉर्म नंबर वगैरह सारे रेगुलेशंस में दे रखे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी वो भी सारा रेगुलेशंस में है, ठीक है। वो सारा मिलता जुलता ही है CIRP से, सिर्फ फॉर्म नंबर अलग अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी फाइनेंशियल क्रेडिटर भी हो और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी हो, तो वो 2 फॉर्म सबमिट करेगा, ठीक है। ए क्रेडिटर में विड्रॉ और वेरियस क्लेम अंडर दिस सेक्शन विद इन 14 days ऑफ इट्स सबमिशन। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, ये वेरीफाई करेगा। ये वेरीफाई कितने दिन में करेगा लिक्विडेटर? 30 days। 30 days, ठीक है। और कुछ भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है और उस बेसिस पे वो रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर रिजेक्ट करेगा तो ही शैल रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग, ठीक है। और उसके अलावा बताएगा भी किसको, क्रेडिटर को भी और कॉर्पोरेट डेटर को भी, विद इन 7 days ऑफ सच एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स। दोनों सिचुएशन में बताना है। एडमिट हो गया क्लेम तो भी बताना है, रिजेक्ट हो गया तो भी बताना है। ऐसा नहीं कि एडमिट हो गया तो नहीं बताना, एडमिट में भी बताना है और रिजेक्शन में भी बताना है, ठीक। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लेम्स, जैसे बहुत सारे हैं, क्लेम्स इन फॉरेन करेंसी, फलाना ढिमकाना, जो CIRP वाले रूल्स हैं वो यहां पर भी लागू है। अपील, अगर अपील करनी है तो क्रेडिटर में अपील टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द क्लेम्स विद इन 14 days ऑफ द रिसीट ऑफ सच डिसीजन। अच्छा, अब आपने एक बात नोट की, वो ये कह रहा है कि क्रेडिटर में अपील, यहां स्टेक होल्डर तो नहीं लिखा है ना, स्टेक होल्डर नहीं लिखा, क्या लिखा? क्रेडिटर। वरना स्टेक होल्डर भी लिख सकता था, भाई क्लेम तो स्टेक होल्डर सबमिट कर रहा है और अपील का राइट किसको दिया? क्रेडिटर को, ठीक है। और रिजेक्शन भी किसका कर रहा है? वो क्रेडिटर वाला ही कर रहा है। ये ध्यान में रखनी है बात, क्वेश्चन में पूछ सकता है इस तरह से। 43 प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन एंड रेलिवेंट टाइम। अब ये 43, 44, 45, 46 ये सारे सेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो इनमें रेफरेंस किसका जाता है? 53 का। तो हमें 43 से पहले 53 पढ़ लेना चाहिए, तभी हमें समझ में आएगा 43। 53 क्या कहता है? 53 कहता है कि मिलेगा कैसे कैसे, किस किस को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट और लिक्विडेशन कॉस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट और लिक्विडेशन कॉस्ट हो गई, उसके बाद में कुछ पैसा बचा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? बाकी सारे अपने घर को जाओ, कुछ नहीं मिलेगा वैसे, ठीक है। उसके बाद में वर्कमैन ड्यूज है 24 months प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, और डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, अगर उसने अपना क्लेम रिलिंक्विश कर दिया। दो सिचुएशंस हैं, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, 2 ऑप्शंस है उसके पास, या तो वो अपना क्लेम रिलिंक्विश कर सकता है या रियलाइज कर सकता है। तो अगर उसने रिलिंक्विश कर दिया तो उसको प्रेफरेंस दे देंगे, यहां पर आ जाएगा। फिर वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज ओड टू एम्प्लॉइज अदर देन वर्कमैन, ये 12 months के लिए। फिर फाइनेंशियल डेट्स ओड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। एक बात ध्यान में रखनी है, यहां पर लिखा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल डेट्स,
ठीक है। लेकिन ऊपर में क्या लिखा, ऊपर में लिखा डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो वो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है जो 53(1)(b) के सेकंड में आ रहा है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ वर्ड क्या लिखा, सिक्योर्ड क्रेडिटर। लेकिन अनसिक्योर्ड में क्या लिख दिया, फाइनेंशियल डेट्स। उसके बाद में गवर्नमेंट ड्यूज 2 साल तक के, या डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर एनी अमाउंट अनपेड फॉलोइंग एनफोर्समेंट, रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, ये पूरा आपका प्रेफरेंस। ठीक है। फीस पेबल टू द लिक्विडेटर शैल बी डिडक्टेड प्रोपोर्शनेटली फ्रॉम द प्रोसीड्स पेबल टू ईच क्लास ऑफ रेसिपिएंट्स। ठीक है, चलिए, तो ये 53 है। अब 53 हमें समझ में आ गया। अब 53 मतलब एक लाइन बना रखी है, इस लाइन को अगर आप डिस्टर्ब कर दोगे तो वो 43 से हिट हो जाएगा। 43 क्या बोल रहा है, 43 बोल रहा है देखो पैसा तो आपको देना है, लेकिन ये लाइन बना रखी है, इस लाइन को मत तोड़ना। अगर लाइन तोड़ोगे तो 43 में आ जाओगे, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। ये नहीं कि आपने कोई फ्रॉड किया है, ये नहीं कि पैसा नहीं देना था, पैसा भी देना था, आपने फ्रॉड भी नहीं किया, आपकी कोई इंटेंशन बैड नहीं थी, लेकिन आप फिर भी आपने लाइन तोड़ दी, तो ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस में आ जाए। ठीक है। Where the liquidator or the RP, as the case may be, is of the opinion that the corporate debtor has at a relevant time, relevant time दे रखा है 2 years in case of related parties, 1 year in case of unrelated parties. Where the liquidator or the RP, as the case may be, is of the opinion that the corporate debtor has at a relevant time given a preference in such transactions and in such manner as laid down in subsection 2 to any persons as referred to in subsection 4. तो वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर अवॉइडेंस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस। और प्रेफरेंस कब मान लिया जाएगा, व्हेन देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और एन इंटरेस्ट दे रहा हो। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको दे रखी है। ठीक है, कैश भी प्रॉपर्टी है, गुड्स भी प्रॉपर्टी है। तो या तो आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी या इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दी। इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड था उसको सिक्योर्ड बना दिया। ठीक है, पार्टली सिक्योर्ड था फुल्ली सिक्योर्ड बना दिया, वो सब चीजें। फॉर द बेनिफिट ऑफ ए क्रेडिटर और ए श्योरिटी और ए गारंटर। फॉर द बेनिफिट क्यों लिखा, डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा टू ए क्रेडिटर श्योरिटी और गारंटर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि क्या करते हैं सीडीबी बचने के लिए डायरेक्टली नहीं करते, वो कह देगा इसको नहीं इसको दे दो पैसे फॉर द बेनिफिट। लेकिन अल्टीमेटली अगर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बेनिफिट है किसको हो रहा है, क्रेडिटर श्योरिटी या गारंटर को। आपने जो ट्रांसफर की प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट वो डायरेक्टली क्रेडिटर श्योरिटी गारंटर को नहीं किया, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए किया। ठीक है, फॉर और ऑन अकाउंट ऑफ एन एंटीसीडेंट फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट और अदर लाइबिलिटीज ओड बाय द कॉर्पोरेट डेटर। पैसे देने थे आपने, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं देने थे, पैसे देने थे, लेकिन आपने क्या किया, ये ट्रांसफर कर दिया। और इसका इफेक्ट क्या हुआ कि 53 में वो प्रायोरिटी चेंज हो गई। 53 में हमने लाइन पढ़ी है, 53 की प्रायोरिटी हमारी चेंज हो गई। लेकिन क्या आप, अब हमने पढ़ा है भाई, आप सीआईआरपी में बहुत काम कर सकते हो, है ना। सीआईआरपी में हमने ये भी पढ़ा कि इंटरिम फाइनेंस बिल लेना है आपको। अब इंटरिम फाइनेंस ले लिया, इंटरिम फाइनेंस वाला कह रहा है सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर दो, ये कह रहा है सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तो 53 हिट हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ एक्सेप्शंस दे दी इन्होंने। इन्होंने कह दिया इफ ट्रांजैक्शन इज मेड इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब अगर आपने कोई सेल परचेज किया ऑर्डिनरी कोर्स में तो वो हिट नहीं होगी। या एनी ट्रांसफर क्रिएटिंग ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू द एक्सटेंट दैट सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्स न्यू वैल्यू, इससे आपको कुछ नई वैल्यू मिल रही है। मतलब एक तो ये है कि आपने लोन लिया हुआ था पहले, अनसिक्योर्ड था, अनसिक्योर्ड लोन उन्होंने कहा कि भैया आपकी कंपनी तो लिक्विडेशन में आ गई, इसको हमें तो सिक्योरिटी चार्ज क्रिएट करो।
तो अगर आपने चार्ज क्रिएट कर दिया तो 53 से ये 43 से हिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है भाई देखो चार्ज क्रिएट करने के बदले में मेरे को पैसे और दे दो, तो फिर फिट नहीं होगा। सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्स न्यू वैल्यू and was given at the time of or after the signing of a security agreement that contains a description of such property as security interest and was used by the corporate debtor to acquire such property। और ये फिर रजिस्टर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास रजिस्टर्ड भी है। लेकिन चाहे कोर्ट का ऑर्डर हो, कोर्ट का ऑर्डर भी इसमें 43 में फॉल कर सकता है। शेल नॉट प्रिक्लूड, मतलब इवन कोर्ट ऑर्डर कैन बी सब्जेक्ट टू प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस। और न्यू वैल्यू का मतलब क्या है? मनी और इट्स वर्थ इन गुड्स सर्विसेज और न्यू क्रेडिट और रिलीज बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी previously transferred to such property transfer in a transaction that is neither void nor voidable by the liquidator or the resolution professional under this code, including proceeds of such property, but does not include a financial debt or operational debt substituted for existing financial debt or operational debt। मतलब अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि एक आदमी ने आपको गुड्स सप्लाई कर रखे हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है भाई देखो तुम पैसे तो दे नहीं पा रहे, मेरे गुड्स वापस कर दो, तो क्या वो ट्रांजैक्शन भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में आ जाएगी? यस और नो? एक आदमी ने आपको गुड्स सप्लाई कर रखे हैं, अब वो कह रहा है भाई देखो ऐसा तुम पैसे तो मुझे दे नहीं पा रहे, तो मेरे गुड्स ही वापस कर दो, और आपने उसको गुड्स वापस कर दिए, तो क्या दिस ट्रांजैक्शन विल बी हिट बाय 43? यस और नो? yes sir। यस, वेरी गुड। क्यों, क्या बोलता है? रिलीज बाय द ट्रांसफरी of property previously transferred to such transferee in a transaction that is neither void nor voidable। लेकिन वो ट्रांजैक्शन void या voidable नहीं होनी चाहिए। अगर void या voidable है तो फिर कवर नहीं होगी, ठीक है। और प्रेफरेंस कब दिया जाएगा? रिलेटेड पार्टी 2 years, अनरिलेटेड पार्टी 1 year। फिर ऑर्डर्स 44 क्या बोलता है? 44 बोलता है रिवर्स कर देंगे जो ट्रांजेक्शन जो इन्होंने किया था, जो इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, जो इन्होंने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया था, उसको हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब एक आदमी कहता है भाई देखो ऐसा है, इन्होंने मुझे सीडी ने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर की थी, पर मैंने तो पैसे दिए थे, तो वो कहता है तुम पैसे वापस कर दो, ठीक है। क्या बोलता है? रिक्वायर एनी प्रॉपर्टी टू बी सो वेस्टेड इफ इट रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन आइदर ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर्ड और ऑफ मनी सो ट्रांसफर्ड। या इन्होंने मुझे पैसे दिए थे कंपनी ने, मैंने उस कंपनी से मैंने उस पैसे से प्रॉपर्टी ले ली, तो वो प्रॉपर्टी दे दो। अगर इन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, मैंने उसको बेच दिया, तो पैसे दे दो। मतलब ये, मतलब जैसा पहले ट्रांजैक्शन थी वैसा ही कर दो। ये 44 है, ठीक है। अच्छा, अगर ये रिवर्स कब नहीं होगा? अब ये कहता है इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जब ये इफेक्ट रिवर्स नहीं होगा। कब रिवर्स नहीं होगा? अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, आप प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। विच वॉज एक्वायर्ड फ्रॉम ए पर्सन अदर देन दी कॉर्पोरेट डेटार, ठीक है। एंड इट वॉज एक्वायर्ड इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए उसको पता था कि भाई इस कंपनी की CIRP शुरू होने वाली है, या वो रिलेटेड पार्टी है, तो फिर वो ये प्ली नहीं ले सकता। मतलब ये कि किसी आदमी को पता चले कि भाई इसकी CIRP शुरू हो रही है, तो फिर वो ये प्ली नहीं ले पाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा CIRP शुरू हो रही है? पब्लिक अनाउंसमेंट से, ठीक है। मतलब रिलेटेड पार्टी ये भी प्ली नहीं ले सकता कि भाई मेरे को तो किसी दूसरे आदमी से मिली थी, CD से तो मिली ही नहीं है प्रॉपर्टी, ठीक है। वो ये प्ली नहीं ले सकता। या फिर कोई ऐसा आदमी ये प्ली नहीं ले सकता जिसको पता हो कि कंपनी की CIRP शुरू होने वाली है। और कैसे पता चलेगा? डीमिंग फिक्शन कब है? जबकि पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई है, ठीक है। 44। अब अगला है 45।
45 क्या बोलता है? अवॉइडेंस ऑफ अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शंस। अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शन आपको मालूम ही है। अंडरवैल्यूड क्या है? या तो आपने फ्री फंड में दे दी प्रॉपर्टी, या फिर सिग्निफिकेंटली लेस वैल्यू पर दे दी। अब ये सिग्निफिकेंटली लेस कौन जज करेगा? इसके लिए इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट अपॉइंट कर देगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, ये है अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शन। 46 में रेलेवेंट पीरियड दे दिया। ये दे दिया आपको रिलेटेड पार्टी में 2 साल और अनरिलेटेड पार्टी में 1 साल। क्या यहां इंटेंशन इंपॉर्टेंट है? इंटेंशन इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपने 100 रुपए की चीज 10 रुपए में दे दी तो अंडरवैल्यूड में आ जाएगी। आप ये नहीं कह सकते भाई मेरी तो इंटेंशन बैड नहीं थी। यहां इंटेंशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फैक्ट की बात कर रहा है कि ऐसा हुआ है तो अंडरवैल्यूड में आ जाएगा। अगर ऐसा ऑल्ट्रेशन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट हुआ है तो 43 में आ जाएगा। इंटेंशन की बात ही नहीं हो रही। 47 क्या है? मान लो लिक्विडेटर या आरपी भी मिला हुआ है खुद ही, तो उस केस में क्या होगा? अगर अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन हो गई और आरपी या लिक्विडेटर ने रिपोर्ट नहीं किया, वो कब नहीं रिपोर्ट करेगा? अगर वो खुद मिला हुआ होगा तो। फिर उस केस में जो क्रेडिटर है, मेंबर है या पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, वो एप्लीकेशन लगा सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। क्या 43 में भी लगा सकता है? नहीं, 43 में सिर्फ आरपी या लिक्विडेटर। 45 में आरपी या लिक्विडेटर, लेकिन 47 में कोई भी लगा सकता है, क्रेडिटर, मेंबर या पार्टनर। और अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि हुई है तो फिर वो क्या करेंगे? ऑर्डर पास कर देंगे, रिस्टोर करेंगे पोजीशन, और बोर्ड को भी बताएंगे कि भाई इस आरपी या लिक्विडेटर के अगेंस्ट में एक्शन लो, क्योंकि ये भी बेईमान है। 48 ऑर्डर इन केस ऑफ अंडरवैल्यूड ट्रांजैक्शंस, वही प्रॉपर्टी रिवर्स हो जाएगी, ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी। 49 में पहली बार आता है कि आपकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है। और खास बात क्या है, इसमें यह भी नहीं लिखा कि एप्लीकेशन कौन लगाएगा। मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 49 में सो मोटो एक्शन भी ले सकती है। इसमें सिर्फ फैक्ट्स बताए गए हैं कि कॉर्पोरेट डेट ने ऐसी कोई अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन की है, और इसका ये मतलब डेलिबरेट इंटेंशन से की गई है। अगर इंटेंशन नहीं है तो 45 में आ जाएगा, अगर इंटेंशन है तो 49 में आ जाएगा। 49 में क्या इंटेंशन है? इनको पता था कि भैया कंपनी डूबने वाली है, तो इन्होंने फॉर कीपिंग द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बियॉन्ड द रीच ऑफ एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू मेक अ क्लेम अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, और in order to adversely affect the interest of such a person in relation to the claim, तो वो फिर रिस्टोर कर देंगे एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पर्संस। ठीक है, लेकिन अगर गुड फेथ में है, फॉर कंसिडरेशन है, तो फिर ये इफेक्ट नहीं होगा। 50 बात करता है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की। एक्सटॉर्शनेट क्या है? पहली बात तो 50 बाकियों से अलग है। बाकियों में क्या है? आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो या कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। 50 में क्या है? आप पैसे ले रहे हो, है ना? वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन ए पार्टी टू एन एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द रिसिप्ट, या रिसीट हो रही है किसकी? फाइनेंशियल या ऑपरेशनल डेट, कि भाई जो भी आपने डेट लिया उसको वापस तो करना ही है ना। तो लेकिन आपने डेट ऐसी टर्म्स पर एक्सेप्ट कर लिया जो कि एक्सटॉर्शनेट थी। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी से पैसे निकालने के लिए कुछ अनरीजनेबल टर्म्स एग्री कर लेते हैं। भाई पहले तो सीडी की चलती है, मैनेजमेंट चलता है, जो मर्जी करो। आपने लीज एग्रीमेंट कर लिया, भैया मैं 50 लाख रुपए पर मंथ रेंट दूंगा इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, वो प्रॉपर्टी की अगर मार्केट में रेंट देखा जाए तो 10 लाख ही है। वो 50 लाख क्यों कर लिया? क्योंकि बाकी 40 लाख रुपए उससे बाकी कैश में वापस ले लेगा। ठीक है ना, कंपनी से तो कैश निकाल नहीं सकते, तो इस तरह से कुछ ट्रांजेक्शन आप कर लेते हो, तो वो एक्सटॉर्शनेट में आ जाते हैं। हैज बीन ए पार्टी, ठीक है, इन्वॉल्विंग द रिसिप्ट ऑफ फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेट, और 2 साल के अंदर। ठीक है, अब यहां पर क्या है
यहाँ 2 साल और 1 साल की कहानी नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 साल ही है, ये भी ध्यान में रखना। रिलेटेड अनरिलेटेड की भी बात नहीं है, यहाँ कुछ कहानी ही नहीं करता। ठीक है, तो क्या है कि अगर वो फिर उसमें रेगुलेशंस में दिया गया कि भाई अगर टर्म्स अनरीजनेबल है तो वो फिर एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर कोई मान लो क्रेडिट कार्ड कंपनी, अब क्रेडिट कार्ड कंपनी का हम जानते हैं कि भाई अगर वो कंपाउंडिंग देखा जाए तो 42% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है क्रेडिट कार्ड कंपनीज का, तो क्या वो एक्सटॉर्शनेट है? द आंसर इज नो, क्योंकि उसके लिए सेपरेट रेगुलेटर है। और फिर ऑर्डर क्या है? ऑर्डर में बेसिकली वो रिवर्स हो जाएगा या मॉडिफाई हो जाएगी। ये 51 है। 52 सिक्योर्ड क्रेडिटर की बात करता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर फिर अलग से पूरा ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास होगी हमारी कल। ठीक है, क्योंकि आज की जो क्लास थी ये हमारी कल वाली जो नहीं हो पाई उसके लिए थी। तो अब 52 से फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर जो आपने अभी 40 lakhs का एग्जाम्पल दिया वो सिंपल आपने ये बोला ना कि कंपनी से इंटरेस्ट वो ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। हाँ, एक्सटॉर्शनेट का थोड़ा सा मिस हुआ है मेरा। एक्सटॉर्शनेट होता क्या है? एक्सटॉर्शनेट का पर्पस क्या है? एक्सटॉर्शनेट का मतलब ये है कि भाई आप ऐसा कुछ, आपने क्या किया, फाइनेंशियल डेट या ऑपरेशनल डेट, वो कहता है रिसीट ऑफ फाइनेंशियल डेट या ऑपरेशनल डेट। आपने फाइनेंशियल डेट ले लिया, आपने टर्म्स ऐसी एग्री कर ली कि भाई मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दे दूंगा, तो वो सारा एक्सटॉर्शनेट में आ जाएगा। या ऑपरेशनल डेट, मतलब जैसे मैंने लीज पेमेंट की बात की, लीज पेमेंट में आपने कह दिया भैया इस प्रॉपर्टी का मैं 20 लाख रुपए रेंट दे दूंगा, कंपनी ने कहा, जबकि मार्केट वैल्यू उसकी 10 लाख ही है। आप क्योंकि 10 लाख रुपए कैश में रिसीव कर रहे हो उससे बाहर, समझ रहे हो? तो ये सारे फिर एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में आ जाते हैं, और इसमें पीरियड 2 साल का है। इसमें रिलेटेड अनरिलेटेड वाली कॉन्सेप्ट भी नहीं है। भाई अगर सर अब देखो भी नजर आ रहा है कि आप गलत ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो अनरीजनेबल लगे कॉमन मैन को भी, बेसिकली बात ही है। सर रिसेंटली एनसीएलटी मुंबई बेंच एक केस जजमेंट दिया है, हम्म। जो व्हाट्सएप में मैंने आपको भी भेजा है। ओके। एनसीएलटी cannot interfere in the commercial bargain between two independent parties. नहीं सेक्शन वो ठीक 50। है, लेकिन वो देखो, लेकिन हमें सेक्शन को एज इट इज पढ़ना है। अगर अनरीजनेबल है तो दे कैन डेफिनेटली, अगर अनरीजनेबल नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। देखो, कमर्शियल एक तो एस्पेक्ट ये आता है कि भाई कमर्शियल एस्पेक्ट एक कमर्शियल डिसीजन है, ठीक है, लेकिन अगर उसके पीछे इंटेंशन खराब है तो वो फिर एक्सप्लोशन में आ जाएगा ना, ये बात है। ओके, ओके सर।